तो मेरे ख्याल में इन दोनों में से पहला अप्रोच मुझे तो लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाला लगता है, इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। Time in market is more important than timing the market. पहला बुल मार्केट होता है ना, वो हमेशा मिस हो जाती है। इसके आगे एक कैपेक्स साइकिल होना काफी ऑब्वियस सी बात है। So I'm talking about your investment. Where do you invest your own money? So majority of my money is invested. Welcome to the FinVision Financial Services. To answer all your questions about mutual fund and investment in market and your personal investment that you should be doing, there is no one else better than Mr. Tridib Bhattacharya, who is the CIO and fund manager at Edelweiss. So welcome Tridib. And Hello, and thanks for inviting me to your show. Conversation that we are going to have, we call it Guftugo, is in continuation to our meet that was last year in somewhere in March, where we met in Mumbai. Welcome to the channel, and we will start from there. Could you give us a brief background about your career from financial analyst to the CIO at Edelweiss, and what were the key moments in your career that shaped your leadership? So I think overall, this is my third decade in equity markets. Okay. The first decade was mostly about understanding how equity markets work and how different sectors which are there in equity markets really present themselves when we are talking about returns. Second and third decade was more about investing. In my investing journey, this sort of sequence where we started off understanding stocks, understanding equity markets, and then getting into investing is just about the right path. And I recommend that for investors who are kind of looking to embark on the investing journey, simply because it gives them first the basic understanding, knowledge, groundwork, and then and that ultimately helps in minimizing the mistakes as we go around in our investment journey. But it's been very fruitful. I started off, of course, responsible for my own work to currently now as a CIO heading the investment team of the organization. It gives me great pleasure and honor to sort of to leverage my experience over the last 25 years with my colleagues and also in the form of investments in portfolios. Sir, with your experience, आपने तो 30 साल के करीब मार्केट में गुजारे हैं. Would you share the snapshot of your investment philosophy that you bring to the table now? देखिए, मेरे हिसाब से हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसके 4 गुण प्रिंसिपल्स होते हैं. पहला हम कहते हैं कि जो वी कॉल इट फेयर. F stands for forensics. Okay. A stands for acceptable price. Nice. I investment style agnostic. Okay, and sir. R for robustness. और यही 4 गुण सिद्धांतों को जोड़ करके हम अपना इन्वेस्टिंग करते हैं हमारे फंड्स में. तो अगर इन चारों को एक समरी तौर पे आपके सामने रखूं तो वो ऐसे लगेगा कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियली क्लीन कंपनीज विच कम्स आउट ऑफ अ फोरेंसिक्स एनालिसिस. वी आर इंटरेस्टेड इन रोबस्ट बिजनेस मॉडल्स. रोबस्ट बिजनेस मॉडल यानी कंपनीज जो ग्रो तो करती हैं लेकिन साथ में उनका रिटर्न रेशियोज वो भी काफ़ी बेहतर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. वी आर इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक, मतलब वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम, क्वालिटी, ये सब से हम ऊपर रख के काम करते हैं क्योंकि मार्केट में अलग अलग फेजेस आते हैं इन सब को बैलेंस करते हुए चलना आता है. एंड फाइनली जो भी स्टॉक हम खरीदते हैं, जो एक्सेप्टेबल प्राइस वाली जो हमारी सिद्धांत है, उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि कम से कम अपसाइड जो हो वो स्टॉक में 20% या उससे ज़्यादा. अगर मैं एक बार इन चारों को बोल जाऊं तो उसमें ऐसा लगेगा कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियली क्लीन companies that can not only grow but have strong return ratios. We are investment style agnostic and we invest in those companies where the margin of safety is at least 20%. तो मैंने देखा है कि equity markets में सबसे ज़्यादा जो important होता है वो ये समझना कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका जो प्रोमोटर है, जो फाउंडर है, उनका इंटरेस्ट हमारे साथ अलाइन हो. यही हम चेक करते हैं जब हम फाइनेंशियल क्लीननेस के बारे में बात करते हैं. जब वो हो और वैल्यूएशंस अपने साथ हो तो जनरली रिटर्न्स बन जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम. I really like the acronym FAIR, FAIR, and you rightly said beyond the balance sheet and all, it is the management which makes the difference, which is important for the long-term investment. Before talking about your fund and fund management, everybody at an individual level has always made a first entry into the market and investment, it's personal investment. Could you share about your first investment in market? Which company it was, in case you can share? How long did you keep it and what were the final outcomes? So while I can't share the company name because this is a recorded conversation, I'm talking about the personal investment, sir. So I would say that
believe it or not, my first investment happened in 2006 2007, Nice. which was effectively in retrospect the peak of equity market. हर इन्वेस्टर को पहला बुल मार्केट होता है ना, Sir. वो हमेशा मिस हो जाती है, Sir. Sir. क्योंकि पहले बिलीफ नहीं होता, फिर धीरे धीरे जब देखते हैं कि हाँ ऐसा Comfort पैसे आने बन लगता है, सकते हैं, sir. तो मैंने इन्वेस्ट किया 2006 2007 में। Okay. मेरे कुल मिला के 5 शेयर हैं जिनको मैंने उस समय इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद 2008 की बहुत बड़ी मंदी आई, वी सॉ द रिसेशन दैट केम थ्रू, बट आई डिड नॉट टच माय होल्डिंग्स। बोला ठीक है, एज लॉन्ग एज कंपनीज आर गुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू शुड एक्यू। आप नहीं मानेंगे, वो सारे 5 स्टॉक्स जो है मैं पीक ऑफ बुल मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद भी वो वहाँ से कहीं गुना हो चुके हैं। सो जो मैं खुद ही जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ये लर्निंग होती है कि टाइमिंग, जो मार्केट में हम लोग काफ़ी बात करते हैं, काफ़ी फाइनेंशियल चैनल्स में भी बात होती है, उसका अगर आप टाइम हॉराइजन बढ़ा दें, उसका औचित्य काफ़ी कम हो जाता है। सो in fact that is one of the most important lessons that I learned and I talk about in my whenever I talk about investing, कि दो चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं, या तो प्राइस आर्बिट्राज, या इतना सस्ता खरीद लीजिए, जैसे कोविड समय में अगर आप कुछ खरीदें तो आपको सब कुछ सस्ते मिलेंगे, या फिर आप टाइम आर्बिट्राज कर लीजिए कि आप एक लॉन्ग टर्म हॉराइजन के लिए इन्वेस्ट करें। तो इन दोनों सूत्रों में आपके पैसे बनते हैं, बट इनके बीच में कहीं हम ट्रेडिंग करना शुरू कर दें तो वो जो नॉर्मली बेनिफिशियल नहीं होता। They say that time in market is more important than timing the market. That says all. And मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस तकरीबन इक्विटी मार्केट में तभी स्टार्ट हुआ था। सिंस आई एम ए फ्लायर, तो मैंने स्टार्ट किया कि वो 7,000 रुपये मिलते थे पर मंथ ऐसे एक्स्ट्रा फ्लाइंग पे। एंड आई ऑल्सो रेड समवेयर, तब तो इतनी जानकारी नहीं थी। आई स्टार्टेड माई मंथली SIP इन इक्विटी दैट टाइम, 7,000 आई यूज टू इन्वेस्ट इन कंपनी कॉल्ड टाइटन। ओके। एंड आई मेड लॉट्स ऑफ मनी। बट जब वो 2008 का क्राइसिस आया, सब कुछ गिरे, लेकिन टाइटन जो मेरा एवरेज प्राइस तो उस टाइम पे 200 रुपये था और वो 800-900 से नीचे नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा, जब पूरा वो बियर मार्केट ख़त्म होने वाली थी, मुझे लगा अभी इसी पे गा जाने वाली है, तो मैंने वो अनफॉर्चुनेटली बेच दिया। हैड आई केप्ट दोज टाइटन शेयर्स, आई हैड 4,000 इन नंबर दैट टाइम, प्री स्प्लिट, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। सो आई लर्न ए हार्डर वे, बट लर्निंग ऑलवेज. Now we would like to know about your funds and all. What are the key strategies that you bring to the table and to make returns for the investors at Edelweiss? कौन से फंड्स हम बोलना चाहते हैं, ये जानने से पहले क्यों हम बोल रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। सो मैं स्टार्ट करूँगा वैल्यूएशंस मार्केट में, क्योंकि आज इन्वेस्टर्स के जहन में ये एक बड़ा मुद्दा है। सो अगर आप मार्केट्स की वैल्यूएशन की बात करें, सो इफ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, लार्ज कैप्स एंड मिड एंड स्मॉल कैप्स। सो इसमें लार्ज कैप जो मार्केट वैल्यूएशंस हैं, दे आर एट पार विद 10 ईयर एवरेज। मतलब उसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कुछ उसमें एग्जूबरेंस है, ना ही कोई फ्रॉथ है। सो वो इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी है। लेकिन अगर आप मिड और स्मॉल कैप शेयर्स की बात करें, तो वहाँ पर जो वैल्यूएशंस हैं, दे आर एनीवेयर बिटवीन 20 to 45% हायर देन 10 ईयर एवरेज। मतलब वहाँ उस एरिया में वैल्यूएशंस काफ़ी बड़े हुए। पिछले 1 साल से स्मॉल और मिड कैप में ही जनरली रैली आई जी। लेकिन ये तो सबको दिखता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट स्टोरी का है वो ये है अर्निंग्स ग्रोथ वाली स्टोरी। ये कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ी एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सो उसमें सूरत हाल ये है कि जो मिड और स्मॉल कैप्स की अर्निंग्स ग्रोथ है वो लार्ज कैप के मुताबिक करीब दुगना है। सो द अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप्स आर डबल दैट ऑफ लार्ज कैप। करेक्ट। सो ये इक्वेशन अपने को बैलेंस करना है। तो इसमें हमारा मानना ये है कि लार्ज कैप तो आप कैसे भी इन्वेस्ट कर लीजिए, मिड और स्मॉल कैप में सिलेक्टिव रह के इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि अगर महंगे हों तो साथ में हम लोग को बेहतर ग्रोथ भी मिले। सो इस मार्केट के माहौल में जब हम इन्वेस्ट करें, तो हमारे हिसाब से 3 तरीके के जो फंड्स हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बेहतर होंगे इस मामले में। ऑफ कोर्स जैसे आप इन्वेस्टर्स का आकलन करते हैं, सो यू डिवाइडेड इनटू लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क टॉलरेंस ऑफ इन्वेस्टर। एब्सोल्युटली। सो अगर हम लो रिस्क टॉलरेंस इन्वेस्टर की बात करें, तो उनके लिए हमारे हिसाब से जो फ्लेक्सी कैप फंड है हमारा, वो काफ़ी अच्छा होगा। वो इसलिए क्योंकि ये कंजर्वेटिव तरीके से रन की जाती है। अबाउट 70% ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ इन लार्ज कैप्स, 30% ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ इन मिड एंड स्मॉल कैप्स। सो इसमें क्या है कि एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, जो मैंने बोला आपको, और मिड और स्मॉल कैप वाला जो ग्रोथ है वो भी लगा हुआ है। सो विद द 70-30 मिक्स फॉर ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, ए फ्लेक्सी कैप फंड इज इन माय ओपिनियन द आइडियल चॉइस टुडे।
अब आते हैं फॉर इन्वेस्टर्स विद मीडियम रिस्क, जिनको वैल्यूएशंस में का ध्यान रखना है लेकिन साथ में ग्रोथ भी ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा हमारा मल्टी कैप फंड। ओके सर। इसमें अगर आप लार्ज मिड और स्मॉल का स्प्लिट देखें, सो लार्ज कैप स्टॉक्स कंप्राइज अबाउट 48% ऑफ द पोर्टफोलियो, रफली हाफ पकड़ लीजिए। सो हाफ लार्ज कैप, हाफ मिड एंड स्मॉल कैप। सो मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा होने के चलते थोड़ा सा वैल्यूएशंस महंगा है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन उसके रिटर्न्स और उसके अर्निंग्स ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए फॉर इन्वेस्टर्स विद मीडियम रिस्क टॉलरेंस मैं रेकमेंड करूँगा मल्टी कैप फंड। अब आते हैं एग्रेसिव रिस्क इन्वेस्टर्स पे। दीज आर ऑफ कोर्स मिलेनियल्स एंड और पीपल विद हाई रिस्क एपिटाइट, या फिर लॉन्गर टर्म होराइजन 10 साल या उससे ज़्यादा, जिनको मार्केट गिरने से डर नहीं लगता है। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मैं रेकमेंड करूँगा हमारा मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड में हमारा लार्ज कैप कंपोनेंट कम है, रफली अबाउट 15%। 85% ऑफ द एक्सपोजर इज इन मिड एंड स्मॉल कैप्स। सो इसमें क्या है कि ग्रोथ का प्रावधान ज़्यादा है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फंड की जो NAV है ये थोड़ी वोलेटाइल रहेगी, लेकिन अगर आप 10 साल का इनका समय दें तो इसमें शायद सबसे ज़्यादा रिटर्न बनेंगे। सो ये मिड कैप फंड होगा मेरा रिकमेंडेशन फॉर इन्वेस्टर्स विद एग्रेसिव रिस्क एपिटाइट और रियली लॉन्ग टर्म होराइजन। सो हमारा जो रोस्टर है एज AMC, ऑफ कोर्स हमारे काफ़ी सारे फंड्स हैं, उसमें से आज के डेट में अगर आप पूछिएगा कि मार्केट का हाल देखते हुए कौन से 3 फंड ऐसे हैं जो अलग इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर होंगे, तो फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप फंड, फॉर रीजनेबल रिस्क इन्वेस्टर मल्टी कैप फंड, एंड फॉर एग्रेसिव रिस्क इन्वेस्टर ए मिड कैप फंड। सारे कन्वर्सेशन में सर स्मॉल कैप का नाम कहीं नहीं आया है, एंड आई ऑल्सो एग्री दैट स्मॉल कैप में तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ती ही है सर। तो सर ड्यूरिंग द एंटायर फंड मैनेजमेंट एंड व्हाट योर लास्ट कैरियर ऑफ लास्ट 30 years shares few moment where you had to take difficult decisions in investment, and how did you go about it? पहले तो स्मॉल कैप फंड के बारे में मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में कुछ गड़बड़, बट वैल्यूएशंस महंगे हैं। Absolutely. इसलिए हम लोग मार्केट्स के 2 एक्सट्रीम्स को अगर आप देखें अवॉइड कर रहे हैं। एक है प्योर लार्ज कैप, एक है प्योर स्मॉल कैप। हमें लगता है कि अभी जो माहौल है उसमें एक मिक्स, एक मिश्रण लार्ज मिड और स्मॉल का जरूरी है, इसलिए मैंने वो 3 फंड गिनाया। अब आते हैं आपका सवाल कठिन डिसीजन मेकिंग। 2 सिचुएशंस, या तो यू आर अ किड इन अ कैंडी शॉप, 2020 का माहौल समझ लीजिए, जब कोविड में सारे शेयर सस्ते हैं, आप कौन से खरीदिएगा। तो उस समय जो हमने पाया कि एक डीप एनालिसिस किए हुए पहले रखा हुआ स्टॉक, जिसमें कि हमको ये हम लोगों का क्लियर है कि अपसाइड कितना है। देखिए, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हम लोग सबसे पहले जो काम करते हैं वो हम अपना एक एंकर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के इर्द गिर्द वो कंपनी के शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। एक बार वो मालूम हो जाए तो फिर कहाँ पे वो ट्रेड कर रही है उसके रिस्पेक्ट में, उससे अपने को अपसाइड का अंदाज़ा हो जाता है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। सो एक मेरा कठिन डिसीजन था जबकि 2020 में मेरे पास कुछ काफ़ी डिफेंसिव शेयर्स थे। मान लीजिए FMCG के कुछ शेयर्स जो गिरे नहीं थे, और उसके सामने कुछ ऑटो वाले शेयर थे जो कि काफ़ी गिर चुके थे। तो उस समय दोनों में वैल्यू था, लेकिन वैल्यू ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स में था क्योंकि उस समय स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके थे। तो ये बेच करके मुझे वो लेना पड़ा। उसमें मुझे लगा कि मुझे कुछ समय लगा ये डिसाइड करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी FMCG की भी बहुत दुरुस्त थे, उनके अर्निंग्स भी बहुत बेहतर आने वाली थी, लेकिन वो महंगे थे और रिलेटिवली वैल्यूएशंस में ऑटो उस समय और कोविड के समय में काफ़ी सस्ता था क्योंकि सब दुनिया जहाँ बंद थी। सो ये एक डिसीजन मेकिंग था जो मेरे लिए टफ था बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट दे आर। दूसरा एक सिचुएशन ऐसा आया कि हमने एक शेयर्स खरीद लिए, लेकिन और जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं तब सोचते हैं कि कैसा करेगा यहाँ, ऐसा क्या होना चाहिए ताकि ये कंपनी का शेयर जो अभी एक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है ये हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुँच जाए, जो कि 20% से उससे ज़्यादा ऊपर है ना। लेकिन ये जीवन है, हर समय ऐसा चीज़ें होती नहीं हैं। सो 2 या 3 महीने खरीदने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि जो हम जिस चीज़ के लिए हम खरीद रहे थे वो अभी चल नहीं पड़ी। हमने ये भी रियलाइज़ किया कि जो हम खरीदे शेयर, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो सब अपने शेयर बेच रहे थे साइमल्टेनियसली, है ना। तो हमने एक, हालांकि ये डिफ़िकल्ट डिसीजन था, हमने एक आकलन किया कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। हमने मालूम पड़ा कि जो कंपनी की लेवरेज है ये हमारे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है,
इसको ये बढ़ गई है, तो इस पर ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा ये, जब मैंने आपको शुरू में भी बताया, जब मैनेजमेंट इंसेंटिव अपने साथ अलाइन ना हो तब वहाँ से दूर हट जाना ही बेहतर होता है। तो ये दो को ध्यान में रखते हुए हमने वो बेचा। हालांकि हम उस समय 10% लॉस में थे, लेकिन उसके बाद से वो स्टॉक आधा हो गया। सो लेते वक्त जब वो डिसीजन ले रहे थे, ये बहुत ही कठिन समस्या था कि जो खरीदे हैं अभी 10% नीचे है, फिर भी बेचना पड़ रहा है। लेकिन ये इन्वेस्टिंग है, इसमें हर समय चीज़ें अपने अनुकूल नहीं होती हैं, और हम लोगों को फ्यूचर पे ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिंग करना होता है। तो ये दो एग्जाम्पल। इसी से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अभी भी ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड जियो टेंशंस बढ़ी हुई हैं, और उधर अमेरिका में मंदी का डर है। सो व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर ऑन in next 5-10 years, which could be the trends that could, or the themes that could play? What I looked at is, we did a study. We evaluated some of the star performers of Asia, Japan, South Korea, Taiwan. जब उनके अच्छे दिन आए थे तब उनके स्टॉक मार्केट्स ने कैसे रैली किया था, उनके कंट्रीज़ में क्या क्या चेंज हुआ था। तो हमने ये पाया कि हम लोग जिस पथ में चल रहे हैं उसमें ये 3 कंट्रीज़ ऑलरेडी चल चुके हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स ये सबसे स्वीट स्पॉट होता है कोई भी कंट्री के लाइफ में, जबकि उसमें इक्विटी रिटर्न्स नॉन लीनियर तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो उसको जो हमारा मंत्रा है इस जर्नी में, वो ये है मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ। वो मुझे लगता है कि इंडिया को काफ़ी दूर तक आके लेके जाएगी। इंडिया की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है आज, वो 78-79% है। इसके आगे एक कैपेक्स साइकिल होना काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। तो अगले 3 से 5 साल में मुझे एक कैपेक्स साइकिल होता दिख रहा है, जिसका बेनिफिशियरी मैन्युफैक्चरिंग, विच इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स, पावर, डिफेंस, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये इसमें बेहतर करेंगे। ये एक एरिया हुआ। दूसरा मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट है, इंडिया की रियल एस्टेट जो सेक्टर है, दिस इज़ इन द मिडल ऑफ ए 5 to 7 ईयर अप साइकिल, है ना। हमने इसके पहले करीबन 10 साल का कंसोलिडेशन देखा था जो प्री रेरा एरा में हुआ था। बिल्कुल। उसके वो होने के बाद, रेरा आने के बाद सेक्टर अभी कंसोलिडेट करके जो बड़े प्लेयर्स हैं, दे आर सीइंग सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन्स। सो अगले 5 से 7 साल इंडिया रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी बेहतर होने का अनुमान है। मेरे ख्याल में उसके हम कहीं मिडिल में हैं। सो रियल एस्टेट सेक्टर एक जो दूसरा सेक्टर मैं कहूँगा जो कि मेरे ख्याल में बेहतर कर सकता है। तीसरा मेरा मानना ये है कि जो रूरल फोकस कंजम्पशन स्टॉक्स है, वो पिछले 3-4 साल में कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल। तो उस एरिया में अभी जैसे मानसून भी बेहतर हुआ है, तो उसके चलते मेरे ख्याल में उनकी जो तारे अभी गर्दिश में थे, उनके शायद दिन कुछ बेहतर हों। तो वो कंज्यूमर और रूरल फोकस कंज्यूमर स्टॉक्स is the third area that I would point as a strong area to go with. The final area that I would point to is basically, NBFCs, non-banking financial customers, companies. ये वो होते हैं जो बैंक नहीं होते हैं लेकिन लेंडिंग फिर भी करते हैं। ये मुझे लगता है नियर टर्म, माने अगले 1-2 साल में काफ़ी बेहतर करने का इनका हिसाब है, क्योंकि जब रेट्स गिरते हैं तब इनको काफ़ी एक खासा बेनिफिट होता है मार्जिन्स तौर पर। और अगर आप अगले 2 साल का व्यू लें तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स हैं ग्लोबली और इंडिया में, वो शायद यहाँ से थोड़े कम नज़र आए। तो ऐसे माहौल में NBFCs कुड बी अनदर स्ट्रॉन्ग एरिया। सो यही 4-5 सेक्टर जो हैं, इसमें हम हमारे फंड्स में भी ओवरवेट हैं, और मैं आपके थ्रू आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि दीज आर गुड एरियाज टू इन्वेस्ट। आई फुली एग्री। जब ये ट्रेंड आता है, जैसे आपने जापान की बात करी, तो जापान का ट्रेंड आया था 1970 से 1990s। पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में था, ऑयल क्राइसिस एंड एटसेट्रा। करेक्ट। लेकिन जापानीज मार्केट, आई थिंक इट रोज बाय 6 times. करेक्ट। And the other sectors you mentioned, they are related to the interest rate theme. Correct. जैसे interest rate कम होंगे तो obviously housing sector को obviously boost मिलेगा, NBFCs, क्योंकि रेट जब बढ़ते हैं, जैसे RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो सारे बैंक्स और NBFCs लोन का रेट तो बढ़ा देते हैं, लेकिन घटने में वो पीछे रहते हैं। सही बात। So that is could be the benefit. If these being so, and I'm talking about now the service class, that I'm from Defense Forces and I'm looking for my fraternity benefiting. So where should a retail investor be investing for a long-term portfolio? What should be the strategy that he should be looking at? So मेरे ख्याल में इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो जो मैंने बात करी, जैसे आपने जापान की बात करी, जापान का इक्विटी मार्केट्स 1960 to 1990 के बीच में 65 टाइम्स रैली किया था। Oh, 65. कोरिया का मार्केट उनको उस समय में करीबन 30 टाइम रैली किया था, 330x। और हम तो यहाँ पे डबल भी नहीं हुए उसमें। और ताइवान के मार्केट्स रैलीड अबाउट 14 टाइम्स। Oh, nice.
जब उनका इकोनॉमिक मिरेकल जो कहते हैं वो हुआ। सो हम उसके सामने अभी तक 2014 से अगर आप काउंट करें तो 2x हुए हैं। करेक्ट। सो हमारा अभी काफ़ी रास्ता बाकी है। ये हो गया लॉन्ग टर्म पिक्चर। इसके बीच में ये नहीं कि करेक्शन नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। करेक्शन आते जाते रहेंगे। बट जैसे आपने कहा कि आपके थ्रू आर्म फोर्सेस के कस्टमर्स को बात करने का मौका मिल रहा है, विच इज़ जेन्युइन आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्लेजर दैट आई डू दैट। तो मैं ये कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म, पहली बात तो ये कि लॉन्ग टर्म पिक्चर को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल, है ना। क्योंकि कभी क्या होता है कि हम 5% करेक्शन से डर जाते हैं, 2% करेक्शन से डर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पिक्चर रह जाती है। तो ये एक ध्यान में रखना चाहिए, पहली बात। दूसरा, मैंने आपके एक पहले सवाल के जवाब में कहा कि कौन से 3 फंड्स में होना चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके दर्शक सुन रहे हैं वो आपके साथ बैठें, कौन से रिस्क एपेटाइट बकेट में वो रहते हैं वो क्लासीफाई करें और उस हिसाब से वो वाला फंड मेरे ख्याल में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा बात। तीसरी बात ये है कि कैसे खरीदना चाहिए। तो मेरा हमेशा से मानना ये है कि लमसम से एक जो STP वाला मोड होता है इन्वेस्ट करने का, वो सबसे बेहतर तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर मार्केट को लेवल को देख करके इन्वेस्ट नहीं करते हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट में एक्सपोजर बढ़ाते हो। तो उसमें मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी हद तक स्मूदन आउट हो जाती है। सो ये 3 अगर प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब हम मिलें तब आपके इन्वेस्टर्स का NAV बेहतर हो। I fully agree, though market we are positive about and constructive about market from here, but STP will give you that cushion also that is Correct. needed. You need to be comfortable with investing. Correct. Thank you, and I'm sure this will help the retail investors. Sir, you being in PMS and this thing also, and these days there are a number of products that are coming in. Do you think what should the retail investor ideally be investing in? Should it confirm 100% investment into mutual funds only, or PMS/small case जो आजकल चल रहा है? So what is your view on that? सो मेरा मानना ये है कि इसको एक लेयर तरीके से सोचना चाहिए। इन्वेस्टर्स की भी अपनी एक जर्नी होती है। मेरी खुद की जर्नी कुछ 25-30 साल है, मैं खुद भी सीख रहा हूँ अभी भी। लेकिन मेरा जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। वो ये कि अगर कोई इन्वेस्टर नया है, इक्विटी मार्केट्स में पहली बार आ रहे हैं, या फिर पहले 3 साल या 5 साल भी पकड़ लीजिए वो मार्केट्स में है, तो सीधे डायरेक्ट स्टॉक्स में PMS, स्मॉल केस, AIF में ना जाके पहले एक सिंपल म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी चाहिए, एक डाइवर्सिफाइड फंड से शुरुआत करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे आप कभी स्विमिंग पूल में कूदते हो तो सबसे पहले पैर डिप करके पानी का टेम्परेचर चेक करना चाहिए। सो मेरे ख्याल में सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस वैसा होना चाहिए। उससे क्या होगा कि पहला एक्सपीरियंस होपफुली बेहतर होगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो काफ़ी अच्छा ट्रेंड होगा। वंस द इन्वेस्टर इज कंफर्टेबल, ही अंडरस्टैंड्स हिज ओन रिस्क प्रोफाइल, फिर उसके हिसाब से एज हिज AUM इन मार्केट्स ग्रो, फिर जो सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज हैं उनमें इन्वेस्ट करने की बात होनी चाहिए, जिसमें से कि एक PMS, AIF, प्राइवेट इक्विटी, ये सारे स्मॉल केस, ये सारे उसके अंदर में आ जाते हैं। फाइनल चीज़ मैं ये कहूँगा, देखिए अभी हमारे देश में रेगुलेशन एक इवॉल्विंग रेगुलेशन, इसमें अभी जैसे न्यू एसेट क्लास का एक रेगुलेशन आया है, तो उन जब रेगुलेटरी चेंजेस हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स एडवांटेज है, जिसको कि खरीदने बेचने में आपको टैक्स नहीं लगता, वो PMS AIF में नहीं है। सो इसके लिए एक अच्छा डिस्कशन अपने एडवाइजर्स के साथ करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि ऑन ए वेरी ट्रांसपेरेंट बेसिस कि कौन सा व्हीकल उनके इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर होगा। मैं यही कहूँगा कि ऑफ ऑल द केसेस, ऑफ ऑल द एवेन्यूज़ टू इन्वेस्ट, जो म्यूचुअल फंड है उसके फीस रिलेटिवली सबसे कम है, एंड एक एक्टिव म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली इन इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, जहाँ के कि रिस्क फैक्टर्स भी हैं। हमने पॉजिटिविटी बात करी, बट एट द सेम टाइम रिस्क फैक्टर्स भी हैं। कभी जैसे हमने कोविड समय में देखा, उस समय फिर हमारे जब इलेक्शन रिलेटेड वोलेटिलिटी आई, तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी को ध्यान में रखते हुए एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड, जो कि मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड का प्रोपोनेंट रहा हूँ, में इन्वेस्ट करने से काफ़ी बेहतर रिटर्न बनने के आसार हैं और इन्वेस्ट करना चाहिए। How we try to convey is जो आपका जो goal based investment है, that should only go to mutual funds. Correct. Stocks and PMS and all should be your money which is beyond your goals. In case you have spare money, because stocks investment, direct stock investment could be unreliable. Very good. Very जिस दिन आप बेचना चाह रहे थे
उस दिन अगर बैड डे हुआ तो लोअर सर्किट लग गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में ये नहीं आएगा। करेक्ट। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म लाइन स्ट्रेच करें तो म्यूचुअल फंड हैव गिवन मच बेटर रिटर्न्स देन डायरेक्ट स्टॉक्स आल्सो। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको एक टाइम इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक्स को मॉनिटर करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। और म्यूचुअल फंड में ऑफ कोर्स आपके खुद के फंड मैनेजर्स हैं हु आर डूइंग द सेम फॉर यू। सो मेरे ख्याल में इन दोनों में से पहला अप्रोच मुझे तो लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाला लगता है, इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। सर, नाउ कुड यू शेयर सम सरप्राइजिंग ट्रेंड और ए इवेंट दैट you faced in market and what could you have learned as a investor or as a fund manager? ये समय है 99-2000 का। Okay, sir. उस समय जब मैं मार्केट्स में नया नया आया था तो उस समय मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को काफ़ी डिटेल में एनालाइज करता था। और अगर आपको याद हो 99-2000 Y2K का समय था। बिल्कुल। और एक समय ऐसा आया था कि जब वो Y2K की नीड पूरी हो गई उस समय डिमांड में काफ़ी बड़ा स्लो डाउन आने की बात थी। तो एक लीडिंग कंपनी था, ये तो फैक्चुअल है, इसमें नाम ले सकता हूँ, तो जैसे इन्फोसिस उस समय लिस्टेड कंपनी था, अभी भी है, पर उस समय जब उन्होंने पहली बार अपनी गाइडेंस कम करी थी कि मैं 100% ग्रोथ की जगह पर रफली अबाउट 50-60% ग्रोथ करूँगा, तो थोड़ा सा आउटलुक कम किया। सो जो उसका स्टॉक रिएक्शन था, पहले दिन वो स्टॉक 40% गिरा, दूसरे दिन वो स्टॉक 24% गिरा, तीसरे दिन वो स्टॉक 16% गिरा, उसके बाद वो स्टेबलाइज होकर ऊपर गया। तो ये मेरा मार्केट्स में पहले 2 या 3 साल में था। तो जब मैंने ऐसी एक बड़ी वॉलेटिलिटी देख ली, उसके सामने जब उसके बाद से जब भी वॉलेटिलिटी आती है तब एक तो उससे डर नहीं लगता, दूसरा उसके बाद मैंने ये भी देखा कि ये कितना गिरने के बाद अगले 3, 4, 5 साल में कैसे शेयर्स ने कम बैक करी। सो ये जो एक अर्ली ग्राउंडिंग हो गया मेरे लिए, वो एक लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा हो, मेरे लिए सरप्राइजिंग था उस समय, इसलिए मेरे को अभी भी मुँह ज़बानी वो नंबर्स याद हैं। और उस एक्सपीरियंस के चलते कभी मैं वोलेटिलिटी से घबराया नहीं और आगे लॉन्ग टर्म पिक्चर देखने की सलाह मिली। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। सो गुड लर्निंग सर, एंड it should tell us a lot about direct stock investing and Correct. market trends. This being so, and you mentioned about the new asset class that SEBI has this thing. What are your views on that new asset class which is likely to be launched? मेरे ख्याल में it gives an avenue for an advanced investor, for a nuanced investor, a high value investor to participate in strategies which are higher in risk, which are low number of stocks, low in liquidity, but very kind of oriented towards specific themes. So मेरे ख्याल में ये अल्टीमेटली एक कोई भी मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड एक्सपोजर होने के लिए सब इन्वेस्टर को अपनी इच्छाएं एक्सप्रेस करने का एक तरीका होना चाहिए। सो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड वर्क्स वेरी वेल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, लेकिन कभी कभी एज इन्वेस्टर्स ग्रो ओल्ड विथ मार्केट्स, उनकी जब एक्सपीरियंस बढ़ जाती है तब उनको ये लगता है कि हमें कुछ एक्सोटिक, कुछ यूनिक, कुछ नया स्ट्रैटेजीज चाहिए जो कि शायद कॉन्सेंट्रेटेड हो, शायद उनमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हो लेकिन उनको रिस्क फैक्टर समझ में आती है। तो उन सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये न्यू एसेट क्लास एक टारगेटेड सेगमेंट है जो मेरे ख्याल में ओवरऑल इन्वेस्टर बेस को बढ़ाएगा। और म्यूचुअल फंड जैसे ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म में जहाँ की हर दिन आपको NAV मिल जाती है, कभी भी लिक्विडिटी की ज़रूरत हो तो वो आपको मिल जाता है, वैसे एक प्लेटफॉर्म में आने से इट विल वर्क वंडर्स फॉर डाइवर्सिफाइंग द इन्वेस्टर बेस। तो ऐसा मेरा मानना है। रेगुलेशन नया है, हम भी इनको अभी स्टडी कर रहे हैं, इनका वेरियस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम, और उस हिसाब से एज एन AMC वी विल रेस्पॉन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3-6 मंथ्स। बट इनिशियल रिस्पॉन्स तो हमारा पॉजिटिव है। हमारा मानना है कि जैसे उसमें 25% डेरिवेटिव का भी एक्सपोजर है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा न्यूएंस, थोड़ा सा एडवांस स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए जिनको कि रिस्क रिटर्न अच्छे से समझ आ रहा हो। There are number of DIY or do-it-yourself platforms and advisories are available on the mobile app and all. So, how do you think the retail investors should strike a balance between DIY and the advisors? मेरा तो स्ट्रॉन्ग मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एडवाइज़र इज़ अ वेरी गुड रूट टू गो फॉर। देखो काफ़ी समय में ऐसा होता है कि हमें अपने खुद का रिस्क एपेटाइट मालूम नहीं होता है, जबकि वो एडवाइज़र having dealt with multiple such people can advise you what your risk appetite is और उसको मार्केट के साथ कैलिब्रेट कैसे करना चाहिए। So an advisor route is certainly
the first port of contact that I would recommend for retail investor. Maybe for monitoring purposes, robo advisors आपके existing investments कैसा कर रहे हैं, they can give a day on day sort of report card कि जो strategies में आपने invest किया है वो कैसा कर रहे हैं. पर जब भी switching करना हो, जब भी क्या बोलते हैं नए strategies की तरफ रुख करना हो, तब मेरा मानना तो ये है कि advisor is still the best way to go, best way forward. And robo advisors and some of those elements are more as good monitoring tools. Absolutely, handholding is needed with advisors is this thing. Sir, in the last, we would like to know where does the smart people and where does the smart money invest? About that, I'm talking about your investment. Where do you invest your own money? So majority of my money is invested in my own funds. Okay. So I believe that you also believe mutual funds. Not only mutual fund but my own funds. Okay. My biggest conviction, because that is where I spend most of my time in finding productive ideas, that stock ideas that work the best for investors. So if that be the case, then my own funds, in my opinion, and as far as I can understand, is the best avenue for making money. So that's the reason हमारी जो मेरी majority of investments हैं वो हमारे म्यूचुअल फंड्स में ही हैं. मेरे जो खुद रन करता हूँ ये हमारी टीम रन करती है. इसको छोड़ करके डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अबाउट 30 to 40% एट एनी पॉइंट इन टाइम जो मेरा मिक्स है वो डेट में भी है. बट दैट इज़ मोर टू एश्योर कि एक स्टडी रिटर्न उसमें आता रहे. बट ब्रॉडली मैं मानता हूँ कि डेट इक्विटी मार्केट्स में अगर आप स्प्लिट देखें रफली 70-30 in favor of equities is a good way to sort of orient asset allocation from an investor standpoint. My biggest learning from this is like you also believe that asset allocation has a role to play. Absolutely. And this should be a good lesson for the investors, retail investors who are looking into market investment. Ki asset allocation is the key to invest and make returns. You cannot be, without research, you cannot be going into direct stocks. You need to, firstly, the best asset class for you is mutual funds, and that too with correct asset allocation as per your risk appetite and investment horizon should be the key. And this is the way to, with this we come to the end of the podcast, sir. Thank you so much. Thank you for being here. And thank you. My pleasure. Through you, as I always said, that I get to speak to army or armed forces in general, people who have serviced the nation. This is my small contribution. Thank you. Thank you so much, sir.